آپ کو سیاسی اور سماجی شخصیت سے ملاقات کرانے کی طرف ہم آپ کو لے کر چل رہے تھے اور انہی سے آپ کا تعارف ایک مرتبہ پھر سے کرا دیتے ہیں. اسکول سے منسلک رہے ہیں, صحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں بھی رہے ہیں, اپنے ضلع کے پی ٹی آئی کے صدر بھی رہے ہیں. اور ایک اعزاز ان کو جاتا ہے کہ 1997 سے جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک ان کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان غزالی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. لیکن یہ ذرا کہانی ہم سنیں گے کہ یہ ریکارڈ بنایا ہوا ہے آپ نے کہ 1997 سے لے کر آج تک آپ کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور یہ اترا نہیں ہے. وہ بیسیکلی خان صاحب جس دن پہلے دن تشریف لائے تھے میرے گھر, تو میں نے بغیر چاند تارے والا 2 رنگ کا گرین اور ریڈ وہ سلوا کے درزی سے لگوایا تھا. تو میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھیان کرنا, یہ جو فیصلہ کر رہے اس پہ قائم رہنا. اور وہ جھنڈا لگانے کے بعد پھر میں نے آج تک وہ جھنڈا اتارا نہیں ہے. جو بھی دور گزرا اس میں جھنڈا وہ لگا ہوا ہے. ہر 4 مہینے بعد وہ چینج ہوتا ہے. اگست میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں, پھر دوبارہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیتا ہوں. اور الحمدللہ وہ پورے سائیوال میں مشہور ہے کہ اس گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور لگا ہوا ہے. تو آپ بنیادی طور پر فاؤنڈنگ ممبر ہیں, تو آپ کتنا مطمئن ہیں حکومت میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کی کارکردگی سے؟ وعدے جو پورے کرنے تھے وہ پورے بہت سارے ہوئے ہیں, بہت سارے نہیں ہوئے. آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ بیسیکلی خان صاحب کا جو ویژن اور خان صاحب کی جو گفتگو پہلے دن میرے سامنے میرے ساتھ جو ہوئی تھی, وہ انہوں نے کہا تھا سیلف اسٹیم, ایجوکیشن فار آل اور جسٹس فار آل. وہ آج تک آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کی گفتگو سنیں, وہ اسی کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. یہ اگر بول نہیں رہے لیکن ورکنگ اسی کے اوپر ہو رہی ہے. میں کم از کم مطمئن ہوں کہ 97 میں اگر خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہیں, اپنے کام کے اوپر فوکسڈ ہیں, وہ کر رہے ہیں. کامیابی ناکامی وہ رب کے ہاتھ میں. ہمارا کام ہے اس کے اوپر ورکنگ کرنا. خان صاحب مسلسل تگودو میں ہیں, مسلسل جد و جہد میں. جیسے وہ خود سیلف لیس ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز, ان کے ایم این ایز, ان کے ایم پی ایز بھی ویسے ہی سیلف لیس ہوں. یہ ناممکن باتوں میں سے ایک بات ہے, کیونکہ ہماری تربیت, ہم لوگ فین کلب کے لوگ ہیں, عمران خان کے فینز تھے ہم. ہماری تربیت 40 سال کا جو نون لیگ کا دور تھا وہ تربیت ہے ہماری. ہم نے وہ دیکھ کے سیاست سیکھی ہے. وہ سیاست کچھ اور تھی, خان صاحب کی سیاست ڈیفرنٹ, ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس کے لیے بڑی تگ و دو اور جد و جہد کی ضرورت. میں مطمئن ہوں کہ خان صاحب ٹھیک جا رہے ہیں, ان کا راستہ ٹھیک ہے, ان کی لائن ٹھیک ہے. ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے, یہ ہماری بیڈ لک ہے. وہ بہت بڑی کمزوری. آپ کی جو شخصیت ہے وہ خدمت اور سیاست کا ایک امتزاج ہے, یہ کمبینیشن کیسے بنا؟ بیسیکلی تو خان صاحب کی وجہ سے ہی میں سیاست میں آیا ہوں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی ہی شخصیت کو دیکھ کے خدمت کا جو ہے, سیاست بیسیکلی ہے تو خدمت. بالکل. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسکول ایک بنائیں بچوں کا, جو بچے آگے نہیں جا سکتے, ضرورت مند ہیں. تو وہ اسکول ہم نے شروع کیا. میں نے اس کو 12 سال اپنی زندگی کے مسلسل اس کو ٹائم دیا, اس سے پہلے بھی. اور الحمدللہ بڑا کامیاب وہ تجربہ تھا. بے شمار بچے ایسے اچھے اسکولوں میں چلے گئے جو کبھی جنہوں نے تصور نہیں تھا کیا اس کے گیٹ سے گزرنے کا. یہ ہمارے دوستوں کی مل کے ہم نے فنڈنگ کر کے ان کو چلایا. الحمدللہ وہ بچیاں بچے اس وقت فرسٹ ایئر میں ہے, کوئی سیکنڈ ایئر میں, وہ آگے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہم نے میڈیکل لائن کے لیے کیمپ, کیونکہ بہت سارے غریب لوگ, ہمارا ایریا جو گاؤں کا زیادہ زراعت کا ایریا, خواتین اور بچے اور مرد جو ہیں جی, وہ زیادہ تر وہ شہروں کی طرف ان کا رخ نہیں ہوتا, رجحان نہیں ہوتا بیسک ہیلتھ یونٹس میں. بالکل. ہم نے بندوبست کیا. ہمارے ایک دوست ہیں الفلاح لیبارٹریز والے, وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, ڈاکٹرز اٹیچ ہوئے. ہم جاتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی سی بہت زیادہ ہے مختلف چکوں میں, وہ پانی کی وجہ سے ہے. شوگر بہت زیادہ ہے. ہم وہ ریکارڈ بنا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کے حوالے کریں کہ اس کے اوپر ورکنگ کریں اور پانی کے لیے کوشش کریں. اچھا, صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے آپ کافی کام کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں کہاں ہمارے ملک میں پانی کی کمی ہے, قلت ہے, صاف پانی نہیں ہے, اور اس کے لیے کیا کیا کام ہونا چاہیے؟ یہ جو پانی کے معاملات ہیں وہ میرے خیال میں تو پورے پاکستان میں ہی خراب ہو گئے.
जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत सारी हमने खुद चीज़ें ऐसी शामिल कर दी हैं, खाद पेस्टिसाइड के ज़रिए, यूरिया के ज़रिए, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहा। सही है। वो आप कहीं भी जाके कोई भी पानी टेस्ट कर लें, वो आपको पानी ऐसा ही मिलेगा। तो वो मजबूरी है कि पूरे पाकिस्तान में उसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको भी देखना चाहिए, साफ़ पानी की हमें फरहमी की हर सूरत कोशिश करें। साफ़ पानी ही जो है मेन वजह है हेपेटाइटिस और BC जो कि फैल रहा है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि साहिवाल मशहूर है मज्जों के लिए, पंजाब का वो खित्ता दूध के लिए मशहूर है, एग्रीकल्चर के लिए मशहूर है, आप खुद ज़मींदार हैं। हमारे यहाँ क्या मसाइल हैं ऐसे कि हमारे यहाँ कोई चीज़, हर चीज़ में मसला आ जाता है। हम सबसे ज़्यादा पैदावार होती है हमारे यहाँ गंदम की, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर शॉर्टेज हो जाती है, फिर गंदम की महंगाई हो जाती है, फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करे, और अजीब सी एक सूरत हाल है। ये क्यों इतने हमारे मसाइल हैं डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री? जो बेसिक चीज़ है ना जी, वो आज से 25-30 साल पहले हर ज़िम्मेदार सब्ज़ी लगाता था अपने लिए। तो 30 साल पहले की बात। अब तकलीफ दे बात ये है, एक ज़िम्मेदार 1 एकड़ का है और एक ज़िम्मेदार 10 मुरब्बे का है, दोनों ही रेडी पे सब्ज़ी खरीदने के लिए खड़े होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक इनिशिएटिव है बहुत मामूली और बहुत छोटा, जो भी लैंड होल्डर है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, उनको पाबंद किया जाए कि आप 5 मरले सब्ज़ी आपने हर सूरत सीजनल लगानी। ये जितना ज़्यादा प्रेशर मंडियों पे महंगाई का शोर होता है, ये अगर वो 5 मरले सब्ज़ी लगी हो तो 5 मरले सब्ज़ी से 5 घर चलते हैं। बेसिकली अगर ज़िम्मेदार को आप देखें बनज़र गौर, उसका जांचें, उसका जायज़ा लें, ज़िम्मेदार को अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ़त दी हुई है, या रज़ा को, बिल्कुल अल्लाह ताला माफ़ करे, बिल्कुल ये सिफ़त है ज़िम्मेदार के पास, सिवाय एक नमक के बाकी वो हर चीज़ अपनी पैदा कर सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें भूल के हमने शुरू कर दिया है कि जी पैसे कमाएं। ये छोटी चीज़ें, मैं किसी को अगर मेरे पास से कुछ सब्ज़ी ले जाए, टमाटर ले जाए, तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मेरे पास से कोई गाजर ले जाए तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट यही था। वो पूरा सिस्टम, पूरा माशरा चेंज हो गया। उसका नुकसान बेतहाशा महंगाई की सूरत में हमें मिलता है। अगर आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक हर गाँव में तकरीबन 100 मुरब्बा ज़मीन होती, उस 100 मुरब्बे में हर शख्स अगर 5 मरले सब्ज़ी लगाता है, तो आप सोचें कि मंडी के ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ मैंने बताया कि 10 मुरब्बे वाला भी रेडी पे खड़ा है, 1 एकड़ वाला भी रेडी पे खड़ा है, वो दोनों ही सब्ज़ी वहाँ से ख़रीद रहे हैं। वो दोनों अपनी पैदा करें तो मंडी जाने की, रेडी पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बदकिस्मती है, छोटा सा काम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। मुतअद्दिद दफ़ा मैंने DC साहब को वहाँ साहिवाल में कहा, कई लोगों को कहा कि बहुत छोटा काम है, आपने सिर्फ ये कहना है कि ये आप पाबंद हैं इस चीज़ के, हम आपको पानी दे रहे हैं, हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप 5 मरले सब्ज़ी लगा लें। उस सब्ज़ी लगने से मंडियों पे प्रेशर कम होगा, महंगाई करोना कम होगा। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम हो गया कि रूल एक लागू कर दिया जाए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकें? क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पर मसाइल भी तो बहुत है ना, कि आप बम्पर क्रॉप होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास तो कमी हो गई है, तो अब हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे डील करें इससे? उसमें वैसा मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी आई एम रॉन्ग, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बम्पर क्रॉप में तकरीबन हर ज़िम्मेदार अपने पास गंदम रखता है अपने खाने के लिए। सही है। अब वो उसके पास गंदम मौजूद होती है, जो शहर का एरिया है उसमें गंदम लोगों के पास नहीं होती, उसमें को कमी बेशी जो है। और फिर मैं इस कदर सेल्फिश हूँ कि मेरे पास मेरी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पड़ी है, आपको मैं देने को तैयार नहीं हूँ, उसका रिज़ल्ट हम सब भुगतते हैं। ये सिस्टम पूरा माशरा चेंज होने वाला है, कि कल्चर चेंज होने वाला है। मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं अगर 10 किलो या 1 मन से आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। लेकिन ये हमारी सोच ये होती है कि ये 2000 रुपये है, ये जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे गंदम की क्रॉप आने वाली होगी, ये 3000 की बिकेगी। मैं उस चक्कर में होता हूँ कि 1000 फालतू कमा लूँ। सही। तो ये तो फिर बुनियादी तौर पे माफिया बन गए हैं ना सारे। अब जब माफियाज हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मतलब चीनी का माफिया है, वीट माफिया है, कब्जा माफिया है, हर तरह के माफिया ही माफिया है।
ये माफिया तो हम खुद ही हैं जी, बाहर से तो कोई नहीं आए। मैंने ही माफिया, मेरा ज़हन माफियाज़ की तरह काम कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ पैसे कैसे कमाने हैं। ये चीज़ें, ये मैंने बताया कि जो खान साहब करना चाह रहे हैं, जो खान साहब बार बार आपको उसवा हुस्ना पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत आपको बताना चाह रहे हैं कि उसको उनको पढ़ें, वो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर। माफियाज हम खुद हैं, माफियाज बाहर से नहीं आए। माफियाज यही है कि मुझे पैसे कमाने हैं, किसी भी तरीके से कमाने हैं। उसके लिए मुझे ये गम नहीं है कि भी मैंने किस किस को ज़िबा करना है। उसमें सरकारी ज़मीन है, उसके कब्ज़े हैं, उसमें ये चीनी की होल्डिंग्स है, उसमें गंदम की होल्डिंग्स है, मत बेशुमार। मैंने खुद देखे हैं लोग गंदम रख के बैठे होते हैं कि इसलिए कि भी आज 2000 कीमत है, कल 3000 होगी, मैं बेचूंगा। ये चीज़ें हैं, ये लोगों को चेंज करने की ज़रूरत। बिल्कुल सही है। अब कभी कब्जा माफिया की कोई बात अब हमने की है माफिया की, आप एक केस भी लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, वो क्या है, उस केस के बारे में बताएं। वो भी कुछ कब्जा माफिया के हवाले से। वो बेसिकली एक कॉमन मैन लैंड है और मुल्हिका ज़मींदारों ने अपने रकबे में शामिल की हुई। वो कॉमन मैन लैंड होती है आम लोगों के इस्तेमाल की और गुज़रगाह होती है। उसके ऊपर गुज़रगाह, उसी के ऊपर एक 50 घरों की बस्ती है, वो गरीब लोग हैं, वो उन्हीं ज़मींदारों, मुल्हिका ज़मींदारों के ही मुलाजमीन है सारे। वो उन्होंने कब्ज़ा की। मेरा रकबा भी उसी कॉमन मैन लैंड के ऊपर है। वो लड़ नहीं सकते, इसलिए वो मैं लड़ रहा हूँ। केस उन्होंने किए हुए, जिन्होंने ज़मीन कब्ज़ा की हुई है, उन्होंने ही केस किए हुए कि जी हमारी ज़मीन है। सही है। उसको मैं साबित कर रहा हूँ कि ये कॉमन मैन लैंड है, ये आपकी ज़मीन नहीं। उसकी लड़ाई हो रही है, वो हाई कोर्ट में भी है, लोअर कोर्ट्स में भी केस चल रहे हैं। तो अल्लाह मेहरबानी करने वाला है, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी होगी। इंतज़ामिया का उसमें अमल दखल वो नहीं है, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई कर दी, ठीक, लेकिन अदालती सिस्टम और बाकी सिस्टम जो है उसको वो कंट्रोल किए हैं। तो ये हर जगह पे ही है। ये एक इस जगह के लिए नहीं, जितनी भी ज़मीनें सरकार की लोगों ने कब्जा की, वो यही कुछ हो रहा है। मतलब आपको एक मिसाल हैरान कुन दे दूं कि वहाँ पे एक बहादुर नगर फार्म है हमारा ओकाड़ा के पास, सही है। उसके पास 100 मुरब्बा ज़मीन थी, और अगर आप चेक करवाएं तो वो 98 मुरब्बे जो हैं लोगों के कब्ज़े में। 98 मुरब्बे प्राइवेट लोगों के कब्ज़े में, और वो लोगों ने कब्जे करके स्टे लिए हुए और बैठे हुए। स्टे जो है ख़त्म नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे अंदर ही अपने माफिया हैं। तो अब जब आपके अंदर माफिया बना हुआ हो तो फिर आप चाहे कोई भी माफिया मांगते रहे, क्या होगा, कौन माफ़ करेगा आपको? गलतियाँ हमारी अपनी हैं, हमने जिनको सही करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इमरान खान गजाली साहब, आपने वक्त दिया।